اس میں سب خواتین شامل ہیں، سب خواتین سے پوچھ کے وہ سب چیزیں بنائی گئیں جو خواتین کے لیے بہتر تھیں۔ نہیں لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں اس میں سے عارفہ مجھے تو پتا جس طرح انہیریٹنس میری جماعت کی کوئی خاتون کو پتا نہیں ہے، جتنا آپ کو ہے اتنا ہی مجھے پتا ہے۔ انفارچونیٹلی میں آپ کو ایسے نہیں کہہ سکتی کہ آپ کو پتا نہیں ہے، ہم پتا ہے لیجسلیٹرز تو بھی یہاں بیٹھے ہیں۔ آپ پرائیویٹلی اگر اپنی میٹنگز بلا کے کر لیں، ایسی باتیں کرنے کے لیے تو میں آئی نہیں ہوں جی، کس کو پتا ہے کس کو نہیں، اگر آپ میری سن لیں گی جی آپ نے کہا نا میری بات آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ میں بھی آپ کو یہی پوچھ رہی ہوں، نہیں وہ کہہ رہی ہیں ان کی پارٹی نے بنایا ہے تو وہ ان کی خواتین کی، ان کی خواتین کی پارٹی نے، آپ ہم نے بنایا ہے، آپ کی پارٹی کے، پھر ٹھیک ہے میں سمجھی آپ دیکھیں جو حکومتی پارٹی ہوتی ہے وہ اپنی بات کر رہی ہیں، حکومتی پارٹی کچھ انیشیٹیوز لیتی ہے، ٹھیک، اینڈ اس حکومتی پارٹی نے جو اس وقت پی ایم ایل این کی شکل میں پنجاب میں موجود ہے، ہم لوگوں نے ابھی سب سے پہلے ہم نے 15% عورتوں کا کوٹا دیا ہے جابز میں، 33% عورتوں کی نمائندگی ہم نے کی ہے، آٹونومس جتنے باڈی کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں جیسے پبلک سروس کمیشن ہے، ہم لوگوں نے بتاتی ہوں سندھ نے چند روز قبل خواتین کا کوٹا 25% کر دیا، اس سے انسپائر کے اندر باتیں نہیں ہوئی ہیں، یہ جہاں یہ لوگ جائے کافیاں پیتے ہیں یا خیموں میں بیٹھتے ہیں، یہ وہاں پہ باتیں ہوئی ہیں، یہ اسمبلی فلور پہ نہیں ہوئی، وہاں پہ لیجسلیشن ہوتی ہے۔ نہیں وہ کہہ رہی ہیں تو ہوئی ہوگی نا، وہ کہہ رہی ہیں نا کہ یہ ہماری کیبنٹ میٹنگ میں 8 مارچ کو 8 مارچ کے آپ وہ نکال کے پڑھ لیجئے، 8 مارچ کے اندر کیا کیا فیصلے 8 مارچ کی باتیں تو نہ کریں، عام کیے گئے ہیں، وہ کوئی چھپ کے نہیں کہیں پہ کیے گئے۔ یہ جو 34 نکاتی پیکیج ہے وہ صرف پنجاب میں آیا ہے، مجھے یہ بتا اس میں ویمن ہماری جو ایون جو ویمن ڈیولپمنٹ کا جو ہم لوگوں نے ڈپارٹمنٹ بنایا ہے اس کی ہماری جو دیکھیے وہ ایک عورت ہی اس کو ہینڈل کر رہی ہیں، اور میں آپ کو یہ یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ اس کے اندر ایون کچی آبادیوں میں جو ہم نے گھر دیے ہیں اس کے اندر ہم نے عورتوں اور مرد کو برابر کا شریک بنایا ہے۔ ہم لوگوں نے ہر 5 عورتیں جہاں کام کرتی ہیں وہاں پہ ڈے کیئر سینٹر بنانے کا حکم دیا ہے، سیکریٹریٹ میں آلریڈی بن گیا۔ اسمبلی میں کیا کیا ہے پتہ ہونا چاہیے نا، پوری یہ تو آپ اپنی کر رہی ہیں، یہ آپ اپنے فن سے یہ کر رہے ہیں، سننا نہیں چاہتی تو that is different، نہیں that is different، you don't want to appreciate initiatives taken for the women, that is different، but یہ سب چیزیں ہوئی ہیں، میں آن ایئر آن ریکارڈ کہہ رہی ہوں کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں، آپ نے اگر چیک کرنا ہے تو آپ ویب پہ چیک کر لیجئے 8 مارچ کو کیا 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 گیا۔ 8 مارچ کے علاوہ بھی کوئی بات کریں نا، میں اوورآل پوچھ رہی ہوں کہ جو قیادت امپورٹنٹ ڈیسیجنز وغیرہ لیتی ہے اس میں آپ کا جی 4 سال میں آپ کا تجربہ کیسا رہا ہے، آپ اپنی کنٹریبیوشن کتنی فیل کرتی ہیں؟ دیکھیے میں اپنی کنٹریبیوشن اس طرح فیل کرتی ہوں کہ میں بہت فخر محسوس کرتی ہوں کہ آج جو پیکیج اناؤنس ہوا ہے جی اس کے اندر ہم سب کا ہاتھ تھا، ہم لوگوں نے سول سوسائٹی کے ساتھ مل کے ہم لوگوں نے بیٹھ کے ہم نے ڈومیسٹک وائلنس بل ہمارا دیٹ از آن دا کیبنٹ ٹیبل ناؤ، ہماری اس کی سمری جج ڈومیسٹک یہ ہوم بیسڈ ورکرز کا ہے، یہ ساری چیزوں کے اوپر ہم نے سول سوسائٹی کے ساتھ مل کے ہماری ایم پی ایز نے ہمارے ڈپارٹمنٹس نے ہم نے مل کے یہ سارا کام کیا۔ اچھا شگفتہ صاحبہ ایک سیکنڈ، یہ بات مجھے شامل نہیں تھے، اچھا ٹھیک ہے مجھے شگفتہ صاحبہ کو بھی شامل کرنے پرانا ہو جائے گا اگر ابھی تازہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں، ہوم بیس ورکر بل میری جماعت لے کے آئی ہیں، نہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ چیک کیجئے، جی نہیں وہ آپ کی پارٹی لائی ہے یا یہ لائے ہیں؟ نہیں میری جماعت ہم لے کر آئے ہیں، میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ کو پتا نہیں ہے، میں یہ بات نہیں کہوں گی، انہوں نے کہا ہم خواتین میں صرف یہ کہوں گی کہ آپ پتا کیجئے۔ اب آپ پتا کیجئے جیسمین کہ نیٹ پہ اسمبلی کے اندر جو وی آر لیجسلیٹرز، نہیں وہ کہہ رہی ہیں کیبنٹ میں ہم نے دیا ہے، کیبنٹ میں انہوں نے جو بلز دیے، کون سے والا بل، وہ کہہ رہی ہیں ڈومیسٹک وائلنس وہ دیا بالکل آیا، سب کر رہے ہیں مل کے، ہم سب کر رہے ہیں خواتین کو، ٹھیک ہے یہ سب کر رہے ہیں، لیکن 33% خواتین، اور کیا کرنا چاہیے، ایک منٹ 33% لوکل گورنمنٹ سسٹم انہوں نے ختم کیا، جو 33% خواتین ریپرزنٹیٹیو تھی وہاں کی، انہوں نے وہ تو ختم کر دیا۔ اب یہ کیبنٹ میٹنگ میں بیٹھ کے خواتین کی پروموشن کے لیے بہت کام کر رہے ہیں، میں عارفہ کو پرسنلی جانتی ہوں، خوشی ہونی چاہیے کہ اگر ہم کام کریں، بالکل میں عارفہ ایک اور ہماری باقی صوبوں میں بھی آپ لوکل گورنمنٹ کی
पोजीशन पूछ लें आप पंजाब की, इसका मतलब है कि बाकी सूबों की भी बात कर लीजिए। नहीं, जहां आप लोकल गवर्नमेंट्स की बात करेंगे, मेरे ख्याल से खैबर पख्तूनख्वा में तो डेट भी अनाउंस हो गई है। शगुफ्ता साहिबा ये बताइएगा, यही सवाल मैं आपकी तरफ ले आती हूँ, आप इस 4 साल को किस तरह देखती हैं, अपनी पार्टिसिपेशन को किस तरह देखती हैं? फिर आपका एक ऐसे सूबे से ताल्लुक है जहाँ पे हमने देखा दहशतगर्दी की जद में वहाँ पर बहुत सारी जो तबाही हुई, स्वात में जो हालात हुए, जिस तरह ट्रीट किया गया, बच्चों के स्कूल उड़ाए गए, फिर एक फोर फ्रंट पे आप लोगों को दहशतगर्दी की जंग में सामना करना पड़ा, तो इसके बाद आप अपना रोल कैसे देखती हैं, अपनी क़यादत के मशवरे और उसमें अपनी पार्टिसिपेशन कैसे देखती हैं? थैंक यू सो मच जस्मीन। सबसे पहली बात, जिस तरह आपने बात की कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हालात है और जिस तरीके से हम फेस कर रहे हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो फ्रंट लाइन है जो कि दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन इस हालात में भी इस तमाम जो सूरत हाल है उसके बावजूद प्रेजेंट गवर्नमेंट जिस तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ कर रही है, और साथ साथ में ख़वातीन के हवाले से बात करूँगी कि ख़वातीन की क्या अचीवमेंट, क्योंकि हम जब असम्बली में बैठी है तो हम वी आर 22 मेंबर जो कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन मेरे ख़्याल में जब भी ख़वातीन का कोई इशू आता है तो उसमें हम सियासी पार्टियों से बालातर सोच के हम उस पर बात करते हैं, और मेरे ख़्याल में तमाम जो मेंबर्स होते हैं उनको सियासी इश्यूज़ नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उसको ख़वातीन के इशू पे यूनिटी से काम लेना चाहिए। प्रेजेंट गवर्नमेंट में हमारी लेजिस्लेशन भी हुई है, इसके साथ साथ मैं समझती हूँ कि लेजिस्लेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी लेजिस्लेशन हो जाती है लेकिन बदकिस्मती से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारी कोशिश ये है कि ऑलरेडी हमारी जो सूबाई असम्बली है उसमें मेरे खुद अपने जो डोमेस्टिक वायलेंस के बिल है, वुमेन ट्रैफिकिंग के है, वो ऑलरेडी अभी है प्रोसेस में है। इसके साथ साथ हमारे और भी काफ़ी लेजिस्लेशन हो चुकी है। तो मेरी यही गुजारिश होगी और मीडिया के ज़रिए भी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस आए, ताकि जो लॉज बने हैं उसको किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, उसके बाद गुफ्तगू को कंटिन्यू रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मुझे ये बताइएगा, मैं आरफा साहिबा आपसे पूछूंगी, देखें अभी हमने देखा हाल ही में जो ये पंजाब में बिजली का बहुत बड़ा एक क्राइसिस है, इसकी मैनेजमेंट के हवाले से चीफ मिनिस्टर साहब तो खुद बाहर कैंप लगा के बैठे हुए हैं, एहतजाज में शामिल हो रहे हैं। हुकूमत का इस पर खैर मौक़िफ़ कुछ और है, वो ले लेंगे, लेकिन आप इसे कैसे देखती हैं? किस कदर लोड शेडिंग का अजाब आप लोग झेल रहे हैं? आप समझती हैं पंजाब के साथ ज्यादती हो रही है बिजली या गैस या दीगर मामलात में? जी जैस्मिन साहबा, मैं बिल्कुल समझती हूँ, क्योंकि आप यकीन जानिए अगर ये लोड शेडिंग पूरे मुल्क में बांट के कर दी जाती तो पंजाब की इतनी सफरिंग ना होती। 66% ऑफ आबादी यहाँ पे रहती है और इनके साथ बिल्कुल तासुब वाला बर्ताव किया गया है, जिसकी बिल्कुल कोई किसी मुल्क में गुंजाइश नहीं होती। और हमारी इंडस्ट्री जिसके साथ पूरा मुल्क जो है वो उसकी ऑब्वियसली एक कंसर्न है, हमारा तबाह हो रही है, लोग सड़कों पे निकल रहे हैं। आप जब हम बाहर निकलते हैं हमें गरेबानों से पकड़ के लोग पूछते हैं, वो कहते हैं आप लोग इनका साथ देते रहे, पहले हम आंसरेबल बन गए हैं फॉर समथिंग विच वी हैवंट डन। अभी जो वज़ीर आला जाके बैठते हैं मीनारे पाकिस्तान, मुझे भी कुछ मीटिंग्स का वहाँ इत्तेफाक हुआ है, आप यकीन कीजिए इट्स नॉट ईजी। वजह यह है कि वहाँ पे तेज़ धूप आ रही होती है और वो कोई जनरेटर नहीं चलाते। एक्चुअली हमने हाथ के पंखों से बैठ के पूरा दिन वहाँ पे गुजारा है और यकीन ये बात हुआ है कि स्किन बर्न होती है तो कैसा फील होता है। मैं बड़ी काबिल एहतराम है मेरे लिए आरफा साहिबा जी, बड़े हाई टेक टेंट्स हैं, कूलर्स लगे हुए हैं वहाँ पर, बिल्कुल हाई टेक टेंट नहीं है। प्लीज मैं आपको कहती हूँ पंखे भी ना लगाएं, मीडिया ने दिखाया सारा, कूलर्स लगे इतने हाई टेक, पूरा मीनार हाथ से पंखे जल रहे थे। नहीं, वो जब मीडिया आती ना आधे घंटे के लिए तो सब यहाँ नीचे से पंखे निकाले। आप लोगों ने ही दिखाया, आपके चैनल्स पे सब दिखाया। कैसे चीफ मिनिस्टर के कैंप पे छापा मार सकती हूँ? एग्जैक्टली, वो इतना कॉर्डन ऑफ किया हुआ है कि बेचारी आम रो रही है कि हमारे पास तफरी की जगह थी। मुझे याद है वो तफरी की जगह थी, उनकी सिक्योरिटी वालों ने उसको आगे नहीं आने दिया। नहीं, लेकिन आप बिजली अगर उनको दे दें तो वो बेचारे मीनारे पाकिस्तान में ना बैठे जाते हैं। बिजली का बहरान है। मैंने भी बिजली पे जी बिल्कुल। जैस्मीन साहिबा, 18वीं तरमीम के बाद सूबों को इख्तियार है कि वो बिजली के पैदावारी मंसूबे बनाएं। बिल्कुल 2 अरब लैपटॉप स्कीम, 3.5 अरब रुपए जो है सस्ती रोटी स्कीम, और ना जाने पीली टैक्सी फलां, ये जो 10 अरब रुपए थे, अगर ये बिजली की पैदावारी
स्कीम्स के ऊपर ये लगा देते, आज जून से लेके अब तक 2 जून आ गया, साल भर में कुछ तो बिजली पैदा कर लेते, ये बिजली थोड़ी पैदा हो जाती है, तकलीफों में अजाला आ जाता है। ये तो ये बिल्कुल दिस इज नॉट फेयर। What is not fair? After 18 amendment, no, the chief minister has said कि वजीर आजम ने अपना वादा नहीं पूरा किया एनर्जी कॉन्फ्रेंस का। एनर्जी कॉन्फ्रेंस पे आपने वादा नहीं पूरा किया। इन्होंने 2 छुट्टियां क्यों नहीं करी हैं? मैं आपको पंजाब में जब इन पंजाब लाहौर में बैठ के किए गए वादे भी हमारे से एनर्जी कॉन्फ्रेंस झूठे वादे किए गए ना, मैं वही तो कह रही हूं, एनर्जी कॉन्फ्रेंस और जो फैसले वहां किए गए उनके ऊपर इन्होंने पंजाब वालों ने, पंजाब की गवर्नमेंट ने, खादिम आला ने कोई अमल ही नहीं किया। सिंध कर रहा है मसलन क्या वादे भाई आप, मैं बजट का बता देती हूं। बजट क्या ये कम एहतजाज है कि पूरे ऑफिस शिफ्ट हुआ? वो चुप करें, मैं यादगार पाकिस्तान और 18वीं तरमीम को आप गौर से स्टडी कीजिए, उसमें सूबों को ये इख्तियार ठीक है। इनसे पूछ लें कॉन्फ्रेंस के बाद, इनसे पूछ लें कि पास पंजाब पावर पॉलिसी है, अगर है तो बता दो क्या देने से ये एक साल में पंजाब पावर पॉलिसी नहीं बना सके, हमने बना ली। अगर और आपने बना ली तो बिजली भी दे दे, हमने बना लिया, मंसूबे भी शुरू कर दिए। 5 साल में आप पावर पॉलिसी बनाएंगे तो बड़ी हैरानी की बात है यार। पहले 6 महीने में इंसान बना लेता है। मैं कह रही हूं सिंध की पावर पॉलिसी, सिंध की, ओके ठीक है, बना ली, हमने मंसूबे बना लिए। आप बताइए पंजाब में जो लोड शेडिंग हो रही है उससे तो आपकी पार्टी को भी इतनी तकलीफ होनी चाहिए ना, आप ऑपोजिशन में हो या हुकूमत में, क्या फर्क पड़ता है? जैस्मीन साहिबा, अभी जो आरफा साहिबा ने कहा 18 अमेंडमेंट के बाद, बिल्कुल वो दुरुस्त फरमा रही हैं। एनर्जी कॉन्फ्रेंस के बाद जो डील हुई थी उसमें 2011 और 2012 का जब बजट बनाया गया था, तो मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रही हूँ, ये प्रूफ मौजूद है मेरे पास, बजट की कॉपी मौजूद है मेरे पास। बजट 2011 और 12 में जो कामरान माइकल साहब थे उन्होंने स्पीच की थी कि पंजाब जो है वो निजी शोबा के साथ मिलके 500 मेगावाट बिजली जनरेट करेगा सुबह पंजाब से। पिछले साल बजट में 11 और 12, ठीक है, पिछला और ये वाला 500 मेगावाट पैदा करेगा। 500 मेगावाट, एक भी मेगावाट बिजली इन्होंने नहीं जनरेट की। ये पहले वो वादा तो बता दें, इन्होंने बजट में कहा हुआ है, मेरे पास कॉपी पड़ी हुई है, मैं आपको अभी नेट खोलें आप और 11-12 का आप बजट निकालें, उसमें पेज नंबर 12 पे देखें इन्होंने क्या दावे किए हुए हैं। ये 500 मेगावाट जनरेट शोबे बाकी रह ही नहीं गए, इन्होंने छोड़ा। पंजाब के निजी शोबे तो बिजली का शिकार हो चुके हैं। मैं आपको क्या बताऊं, आपने क्यों ये वादा 2011-12 में, इनकी पॉलिसी मेकिंग नहीं है, ताल्लुक है आपको इसकी तबाही का जो बिजली की वजह से हुई है, क्या आप उसको महसूस नहीं कर रहे? आरफा, जो आप क्या कमिटमेंट आप लोगों ने की थी पंजाब के लिए, वो क्यों नहीं पूरी शोबों को आप मुझे बताएं किस निजी शोबों से बात करें जो बिजली से जिनके मजदूर सड़कों पे बैठे हैं, निजी शोबों से बात करें। नहीं, एक सेकंड आरफा साहिबा, वो ये कह रही हैं कि आप लोगों ने बजट की तकरीर में ये कहा था कि 500 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे, 40 अरब रुपया मुख्तस किया गया, वो पैसा किधर गया है? ये इन्होंने ट्यूबवेल्स के लिए रखा, वो पैसा कहाँ है जो मेरी बात सुनिए, हमारे पैसे का एक पैसे का हिसाब है। ठीक है, पंजाब की गवर्नमेंट नहीं है, हमारे पास एक पैसे का हिसाब है। सस्ती रोटी तंदूरों में, येलो ट्रांसपेरेंट काम किया, जो काम किया, हमने चोरी नहीं की है इस मुल्क की, जिस तरह बाकी सूबों में है वैसे पंजाब में नहीं हुआ है।